जावेद अली एंड पलक चंद जिन्होंने गाना गाया है, सिद्धार्थ जेना जिन्होंने डायरेक्ट किया है. सो थैंक यू सो मच. Therefore, I'm sure all of you will agree this was really dreamy. So many cute moments packed together. I think the kind of romance that we see in this video itself sets the precedent कि show में आपको क्या-क्या प्यार मोहब्बत देखने मिलने वाला है. So it's a beautiful vision. So let's call the man behind that vision, the man who has not just envisioned this beautiful dream, but has translated it onto the screen beautifully. Prateek Sharma, the producer of the show, please tell us a little more about ये show कैसे हुआ, कहानी किसने कैसे लिखी, कैसे किरदार डेवलप हुए. So तुमसे तुम तक is a very special show for more than one reason. ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं शरद भाई 8 साल बाद टीवी पे वापस आ रहे हैं, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. दूसरा चीज़, वंदना जी ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद खुद उनका लास्ट टेलीविजन शो था वो जी के लिए ही हमारे साथ मनमोहिनी था. Her coming back. Why don't you all join us up on stage? Can we please have Somaji, and Somaji, please, both of you all, please join us up on stage. Jai Hiran, Vandana Pathak, and Soma Rathorji. ये शो बहुत खास है. शो के खास होने का रीजन शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज नॉट हियर, निसार सर इज नॉट हियर. बहुत सारे रीजंस हैं. एक बहुत बड़ा रीजन है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि. दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, इक्वली पार्टनर ऑन एवरी. Big cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं. पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज ऑल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो. मंगेश जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है एंड आई कैन प्राउडली से दैट जी पे हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे शोज बनाए हैं. बट तुमसे तुम तक के साथ में उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट होती जा रही है, ये शो शायद प्यार को इंस्टेंट नहीं होने देगा. ये शो बारिश में चाय पीने वाला रोमांस है. ये शो पुराने गाने सुनने वाला रोमांस है. ये शो एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाला रोमांस है. अनु और आर्या टुगेदर दे डोंट मेक 1 and 1 1 + 1 2, बट वो एक और एक 11 बनाते हैं, जहां आर्या की कमी को अनु पूरा करती है और अनु की कमी को आर्या पूरा करता है. ओल्ड स्कूल रोमांस है जिसमें आपको प्यार का एक बहुत ही अलग रंग देखने को मिलेगा जो शायद हम सब देखना चाहते हैं. एंड इस तरह की कहानी अभी टीवी पे कोई नहीं है. हम आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाना शायद कुछ हद तक भूल चुके हैं. सो शायद तुमसे तुम तक के साथ हमारा एक बहुत ही हम्बल प्रयास है कि हम ओल्ड स्कूल रोमांस एंड ओल्ड स्कूल लव स्टोरी को वापस लेकर. Beautifully put. Man is so articulate. इतना खूबसूरती से आपने शो को डिस्क्राइब किया है. I'm sure the entire audience is very keen to see a glimpse of this show. Yeah. Can we show them the AV, please? I guess आपको अब पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा. तो I'm sure the media is eager to ask their queries about this love story which is so unique and the whole age gap. So please show us, raise your hands and kind of indicate to us आपको सवाल पूछने हैं. The team will pass on the mics to you. I can see your hand go up there. Yes, Pooja ji आपके पास भी. Lovely. Let's start with Pooja ji. Come on. Hello, good evening everyone. Sharad, hi. How are you, Sharad? Good ma'am. How are you? Looking dapper, handsome. Sharad, I would like to know कि how do you feel after hearing the script and what tempted you to do this role and coming back to television in spite of your busy schedule? For the last so many years, people asking me when will you be back on TV. So I was looking for a particular kind of role where it suits me. I'm not a person because television is very real, very it's every day. So you can't fake it a long time. So it should relate to you what I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts, and a beautiful love story behind it. People think that I'm a very harsh man or I'm a very tough guy, but I think I'm a very highly romantic person.
Pratik knows. And what would I say? Because the first image which people build of mine is he is that macho, tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So अगर hero बनना है तो ये show देखना करना पड़ता है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है. यहाँ पे बात तुम से तुम तक हो रही है. Can somebody from ZTV? Pratik, you want to take that? तो मैम जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, तो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं है. वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है. सो दैट इज वाई तुमसे तुम तक. मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी हो. हम दोनों का सफर एक दूसरे के लिए. A very evolved explanation. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in front? I was one of his warriors. He got it था, but वो गाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर. हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to छत्रपति शिवाजी महाराज. How does it feel? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who's looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically to shift roles. You can't continue with one role. And I have said this 100 times that I can't even reach to his feet. I am a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Maharaja's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get it once, maybe or twice in a lifetime. So would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles, and that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character, very layered, very complicated. As right now in promos it's not seen, but I can promise you it's pretty complicated. Thank you so much first of all. And शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी. So ये मेरे लिए फैमिली है. जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग. इतने साल नहीं करना, वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था और ऐसे था भी, क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए. तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं. मैंने कहा नहीं मुझे करना है. बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है. द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटीफुल शो. ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है, और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है. जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अलग है. इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है. कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, लेयर्ड है बहुत सारा, और सीक्रेट भी है इसमें. जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया है. और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतना अच्छा शो हो और मैं उसका हिस्सा ना बनूं, ये हो नहीं सकता. मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ग्रैब कर लेता. गायत्री देवी एक ऐसी घर की हेड है जो सबको प्यारी है. शी इज सो ग्रेसफुल. इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी में भी उसके अंदर एक स्टिलनेस है. पूरा बिजनेस हैंडल करने में मदद करती है, और उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि आर्यन को कहना और मनाना कि तू शादी कर ले. बिकॉज किसी भी एज में, आज सलमान खान को भी हम बोलते हैं कि सलमान खान प्लीज शादी कर लो, तो आर्यन तो बहुत छोटा है. तो उसकी लाइफ का एक ही ध्येय है एज ऑफ नाउ
कि आर्य तू शादी कर ले, और जब उसकी लाइफ में अनु आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। और आपने जिस तरह की ये आपने ये जो टीजर्स, ट्रेलर्स या जो भी आप कहना चाहो वो आपने देखे, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं। सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो कोई और क्यों करे, मैं ही कर लूँ। I think at the center table we had. आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे आपने सबने देखा ही होगा। और बहुत मज़ा आया उस शेड्यूल में, बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली, बट हमारी प्रोडक्शन ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, मतलब एक बिजी स्ट्रीट पे आपको शूट करना है। तो इस शो से मैं आई थिंक काफ़ी कुछ सीख के निकलूंगी। मतलब ये मेरे सब्र का फल है दिस शो फॉर श्योर। चक्कर भी आ रही है। बेहोश भी हुई थी गर्मी से, सॉरी। यस, बट शूट तो करना ही है, शो मस्ट गो ऑन। सो That's the spirit. We have one more question, the last question. Yeah, hello everyone. हारिका का उससे ज़्यादा है स्क्रीन से ज़्यादा बॉन्ड है हमारा। और इसको मैं हमेशा, जैसे माएँ टोकती ना खाना ठीक से खाओ छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे। और अगर मैं किसी और को कह दूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री है, हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। बता दो आपको, लोग भले मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ ये। एवरीबॉडी इज अ ह्यूज फैन ऑफ हर। ये एकदम खासी घर से हमेशा कुछ रोज खाने के लिए लेके आती है। हम सब वेट करते हैं कि इस दिन सोमाजी के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती है। और शी इज रॉक स्टार। आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर। मैं तो ऑलरेडी एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे। That brings us to the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोगों को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं। Yeah. So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture and then the solos?